So today we will start section 35 AD and sale of scientific assets. Okay. Corporate tax planning. In corporate tax planning, how section 35 only for capital investment. When you invest in capital goods or capital assets, you will claim 100% deduction under section 35 AD, but it is limited to some businesses only. So whenever you get any questions regarding CTP, corporate tax planning, where like depreciation problem will be there, where it will be written that it was the business for setting up of warehousing or cold chain facility, then whatever be the capital amount, whatever be the capital asset, that will be 100% deduction. So you have to think both section 35 AD, section 32D, all these sections are clubbed with each other. And whenever you are solving any corporate tax planning problem, you have to think about that. Okay. So today we will start with section 35 AD and section 43 subsection 1. So investment in specified business. When you invest in specified business, then you will get section 35 AD deduction. When you are investing in specified business, then you will get section 35 AD. Specified business means which type of business. माने सबसे पहले बता देते हैं, only capital expenditures are covered under section 35 AD. Only capital expenditure, revenue expenditures are not covered under section 35 AD. Section 35 AD में हम लोग revenue expenditure covered नहीं करते हैं. ओके. लेकिन इसमें क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा. लैंड पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो सेक्शन 35 AD विल नॉट कवर्ड. गुडविल सेक्शन 35 AD विल नॉट कवर्ड. एंड नेक्स्ट will be the financial instruments. Financial instrument, any type of financial instruments. On this, other than these three, section 35 AD covered for all capital expenditures. So capital expenditures, all type of capital expenditure other than land, goodwill and financial instruments. ठीक है. Next, which type of business? कौन कौन सा business है? Nature of माने कौन कौन सा specified business है where you will get invest and you will get deduction under section 35 AD. क्या क्या है? पहला, setting up and operating a cold chain facility. Setting up and operating a cold chain facility, number 1 business. Number 2, warehousing facility. Warehousing facility जिसमें agriculture production produce goods को तुम store करते हो, तो वहां भी तुम अगर invest करते हो तो तुमको ये deduction मिल सकता है. Affordable housing project, if any type of housing projects you are doing business for that, then you will get deduction under section 35 AD. Production of fertilizers का production करने का काम करे तो मिल सकता है. हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड्स का अगर हॉस्पिटल है तो तुमको ये डिडक्शन मिल सकता है. नेक्स्ट, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, माने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पाइपलाइन का काम कर रहे हो पेट्रोलियम ऑयल या नेचुरल गैस के लिए, तो भी ये डिडक्शन मिल सकता है. होटल 2 स्टार से प्लस होना चाहिए, माने 2 स्टार होना ही चाहिए मिनिमम. 2 स्टार से ऊपर होगा तो ये डिडक्शन तुमको मिल सकता है. स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग, माने स्लम एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हो, री हाउसिंग डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वहां भी ये डिडक्शन तुमको मिल सकता है. नेक्स्ट क्या है? सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ ICDs एंड CFS नोटिफाइड और अप्रूव अंडर द कस्टम एक्ट 1962. ICDs कस्टम एक्ट के अंदर में आता है. ठीक है. ये सब क्या होता है? ये सब तुम्हारा इनपुट क्रेडिट मिलने के लिए होता है. तो ये सब कुछ डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस करने के लिए. वहां पर कस्टम में जो हमारा माल पकड़ लिया तो वहां रखने के लिए होता है, तो वो सब के लिए तुमको ये डिडक्शन मिल सकता है अगर उस तरह का बिजनेस है तो तुम्हारा. बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वर्क्स, वही हनी बनाने का काम या बी मधुमक्खी को रख के उसका हनी निकाल के उसका बी वैक्स बनाना, ये सब ऑल दिस थिंग्स. वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, शुगर को स्टोर करने के लिए जो अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है तो वो भी तुम्हारा एप्लीकेबल है यहाँ पे. लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बैठा रहे हो, तो वो भी बिजनेस तुम्हारा इस बिजनेस में स्पेसिफाइड होता है. सेटिंग एंड ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. वेफर माने सेमीकंडक्टर वेफर बनाने का मशीन होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता है, फैब्रिकेट करते हैं उसको, तो वो भी तुम्हारा एप्लीकेशन होता है. और लास्ट वन क्या है? डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया. कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटिंग कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो तो तुम्हारा स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाता है. तो ये था स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में. टोटल 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस दिया हुआ. उसके अंदर में अगर तुम फॉल करते हो तो यू विल गेट 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तुमको 100% डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 35 AD में. नेक्स्ट,
परमिसेबल एक्सपेंडिचर फॉर डिडक्शन, क्या कौन कौन सा डिडक्शन परमिसेबल है प्रायर पीरियड या आफ्टर जो है प्रायर पीरियड एक्सपेंस। प्रायर पीरियड एक्सपेंस माने बिफोर यू सेट अप द बिजनेस, माने इफ कैपिटलाइज इन द, अगर बुक्स में कैपिटलाइज किए हो तो तुमको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किए हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पोस्ट कमेंसमेंट माने बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगर खर्चा कर रहे हो तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी प्रीवियस ईयर में अगर इनकर्ड करोगे तो उस प्रीवियस ईयर में सेक्शन 35AD का डिडक्शन तुमको मिल सकता है। तो प्रायर पीरियड एक्सपेंस के लिए कंडीशन क्या है, द एसेट्स मस्ट बी कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तभी तुमको डिडक्शन मिलेगा। अब पोस्ट कमेंसमेंट के लिए बोला हुआ कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, वो जिस ईयर में करोगे उस ईयर में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज है, अगर कोई एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो और उसको तुम कोई आदमी को पैसा दे रहे हो अदर देन बाय अकाउंट पेज चेक, अकाउंट पेज चेक पे नहीं दे रहे हो, माने कैश पे दे रहे हो, ठीक है, या तुम बियरर चेक दे रहे हो, तो 10,000 से अगर ऊपर होता है तो तुमको डिडक्शन उस अमाउंट का नहीं मिलेगा। माने बोलने का मतलब है, जैसे तुम्हारा कैपिटल एसेट्स का दाम है, कैपिटल एसेट्स का दाम है 50,000 का परचेस किया, यू हैव परचेस 50,000 और इसके अंदर में तुम 35,000 तुम चेक में दिए हो और 15,000 कैश में दे दिए, तो 15,000 तुम्हारा डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कैश में 10,000 तक दे सकते हो, 10,000 से ऊपर होने से कैश में नहीं दे सकते, अगर देते हो तो मनाही नहीं है, लेकिन यू विल नॉट गेट द डिडक्शन, तब तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू कांट गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है ये अब हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 है, इट इज नॉट सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई बिजनेस को एग्जिस्टेंस माने नया बिजनेस करोगे तभी मिलता है, ये याद रखना। अगर कोई बिजनेस को एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट कर रहे हो, स्प्लिट करके बना रहे हो या रिकंस्ट्रक्ट करके बना रहे हो, तो तुमको ये रिडक्शन नहीं मिलेगा। टोटली न्यू बिजनेस होना चाहिए तभी ये रिडक्शन तुमको मिलेगा। इट इज नॉट सेट अप बाय ट्रांसफर ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। अगर तुम कोई नया बिजनेस चालू करो उसमें सभी का सभी प्लांट मशीनरी अगर सेकंड हैंड लेके बना रहे हो तो भी ये रिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है, सेकंड हैंड मशीनरी के लिए एक्सेप्शंस क्या है, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज न्यू फॉर दिस सेक्शन। माने इस सेक्शंस के लिए है, खाली अदर सेक्शन में नहीं मिलेगा। इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी माने सेकंड हैंड इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी अगर है तो भी वो नया माना जाएगा, क्लियर, अगर सेकंड हैंड है तो भी। और क्या है, प्लांट मशीनरी, यस सर ये SEZ की तरह ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस यस यस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह है, लेकिन टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तुम्हारा एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर पे बेसिस करके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर टोटल टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर तुम जितना इन्वेस्ट करोगे, द टोटल इन्वेस्टमेंट यू विल गेट डिडक्शन, ओके। इसीलिए ये सब बिजनेस के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए बोला जाता है। मैंने इस बिजनेस में तुम जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किए ना, 1 करोड़ किए तो 1 करोड़ का डिडक्शन तुमको मिल गया पहला ईयर में, तो तुमको लाभ हो रहा ना। यू विल कैरी फॉरवर्ड योर लॉस, एक जो डिडक्शन है उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओ लॉस बोल के, इसीलिए। तो इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी पे ये डिडक्शन मिल सकता है अप टू 20%। माने अगर कोई यूज प्लांट मशीनरी 20% ऑफ वैल्यू, माने प्लांट मशीनरी जैसे तुम्हारा टोटल तुम इन्वेस्ट किए हो 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 20% माने 20 करोड़ तक सेकेंड हैंड अलाउ है, 20 करोड़ तक सेकेंड हैंड अलाउ है, उसके बाद अलाउ नहीं होगा। 20 करोड़ तक सेकेंड हैंड अलाउ होगा, उसके बाद नहीं अलाउ होगा, तब वो तुमको एलिजिबल है। देन यू विल गेट 100 करोड़ का डिडक्शन तुमको मिल जाएगा। लेकिन अगर 100 करोड़ के अंदर में, 100 करोड़ के अंदर में अगर तुम्हारा 40 करोड़ का तुम्हारा सेकेंड हैंड मशीन है, तब तुमको सिर्फ 60 करोड़ का ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी 40 करोड़ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन बशर्ते ये भी है कि इसमें देखो 40% है ना, तुमको हो सकता है 100% ही क्लेम नहीं मिले, क्योंकि इस सेक्शन का नाम ही है कि इट इज नॉट सेट अप बाय ट्रांसफर ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी से ये बिजनेस, ये वाला नया बिजनेस नहीं बना कर सकते, सब चीज नया खरीदना पड़ेगा, नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, नो डिडक्शन अंडर एनी अदर सेक्शन, कोई अदर सेक्शन में तुमको डिडक्शन नहीं मिला, जैसे सेक्शन 10A में सेज यूनिट के लिए या 80IA या 80 RRB ये सब के लिए तुमको डिडक्शन नहीं मिला, या 35AD, ठीक है। जो पहले अदर ईयर में उस पर 35AD ले चुके हो, वापस लेने का चेष्टा करो तो वो नहीं चलेगा, ओके।
क्या है, यूज ऑफ एसेट्स टिल 8 years फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। माने जब जो एसेट्स को तुम जिस पर डिडक्शन लिए हो, दैट एसेट्स मस्ट बी यूज फॉर 8 years फॉर दैट स्पेसिफाइड बिजनेस। उसी स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना पड़ेगा उस एसेट्स को, ठीक है। अगर तुम यूज नहीं करते हो अदर देन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, अगर उस एसेट को यूज कर लेते हो तो वो उस साल का तुम्हारा डीम्ड इनकम माना जाएगा। माने जिस ईयर में तुम उसको एसेट्स को अदर देन उस स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज कर लिए, तो उस ईयर में जितना रुपया का तुम रिडक्शन लिए तो उतना रुपया तुम्हारा उस एसेट्स का जो कॉस्ट है वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस। ओके, यानी 8 साल तक तुमको उसी में यूज करना है। तो यानी इसमें तुम्हारा इनकम क्या हो जाएगा, टोटल डिडक्शन क्लेम एंड अलाउड इन 1 or more प्रीवियस ईयर। माने जितने साल में तुम डिडक्शन क्लेम किया उससे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन अलाउड एज इफ डिडक्शन वाज अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD। माने उससे डेप्रिसिएशन माइनस करो, मान के चलो कि तुमको 35 AD नहीं मिला तो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा इनकम कहलाएगा, दैट विल बी योर इनकम। इसको इसमें खाली याद रखना एक्सेप्शन का, इफ कंपनी बिकम ए सिक विद इन 8 years द प्रोविजन विल नॉट बी। अगर कंपनी बीमार हो गया है, माने कंपनी का घोटाला घाटा हो गया है, अब कंपनी उभर कैन नॉट बी रिवाइव, तब उसको हम लोग बोलते हैं सिक कंपनी। तो सिक कंपनी के लिए ये प्रोविजन फिर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो तो रिवाइव कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ द एसएससी हिमसेल्फ। माने तुम कुछ गुड्स और सर्विस अपना खुद का बिजनेस है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, वहां पर ट्रांसफर कर दे रहे हो, तब क्या होगा, तब where any goods or service held for specified business are transferred to any other business carried on by the SSC or vice versa, and ठीक है, consideration of such transfer does not correspond with fair market value of the goods and service। यानी बोलने का मतलब है इस देखो इस यहाँ पर क्या क्या है, प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस shall be computed as if the transfer was made at fair market value। यानी याद रखना, जैसे तुम स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई भी गुड्स और सर्विस को अपना नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, या वाइस वर्सा, माने नॉन स्पेसिफाइड से स्पेसिफाइड में भी नहीं आ सकते और स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड में भी नहीं जा सकते, ठीक है, स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड में भी नहीं जा सकते, क्लियर। तो उसमें क्या होगा, वाइस वर्सा बोला गया, माने स्पेसिफाइड टू नॉन स्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड। इस केस में क्या होगा, जो भी तुम ट्रांसफर करोगे उसका फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए। अगर फेयर मार्केट वैल्यू में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट उस स्पेसिफाइड बिजनेस का उस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि मान लो कि तुम फेयर मार्केट वैल्यू में उस एसेट्स को या उस गुड्स को ट्रांसफर किए हो, भले तुम 10 रुपए का चीज था लेकिन तुम 8 रुपए में ट्रांसफर किए, लेकिन जब तुम्हारा प्रॉफिट निकाला जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस का तो 8 रुपया नहीं पकड़ के हमको 10 रुपया ही पकड़ना पड़ेगा उस गुड्स का वैल्यू। ये है प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 5, मैंने अगर कोई गुड्स ट्रांसफर करते हो तो। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, अगर कोई एसेट ट्रांसफर या डिस्ट्रक्शन या डिमोलिशन या डिस्कार्ड हो जाता है जिस पर डिडक्शन ले चुके हो, यू हैव ऑलरेडी टेकन डिडक्शन, उसका एसेट्स का डिस्कार्ड हो गया, डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो क्या होगा, if any asset on which deduction under section 35 AD have been claimed and allowed is demolished, destroyed, discarded or transferred, ये अगर हो गया है तब क्या होगा, such sum received on such transfer is taxable under section 28 subsection 7। 28 subsection 7 रोमन 7 में हम लोग जितना भी अमाउंट उससे रिसीव करेंगे, माने डिस्ट्रक्शन होने के बाद अगर कुछ मिलता है या डिमोलिश करने से कुछ मिलता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इसमें। तो होप इट इज क्लियर टू यू, सेक्शन 35 AD तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेक्शन 35 AD में इतना कुछ बताने का नहीं है, तो टोटल 14 बिजनेसेस है। उस बिजनेस के लिए अगर तुम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुमको 100% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी कोई भी सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बिजनेस स्प्लिट करके नहीं बनना चाहिए। और इसमें एक्सेप्शन रूल में यह है कि इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी सेकंड हैंड होगा तो भी अलाउबल है, और अदर लोकल अगर सेकंड हैंड में माने सेकंड हैंड मशीनरी 20% ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल मशीनरी का 20% अलाउ अगर है तो अलाउ है पूरा, अगर नहीं है तो ये सेक्शन पे तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर हो गया, ओके कि नहीं, इज इट क्लियर। Okay. Yes, sir. Now we will start sale of scientific assets। Scientific assets सेल करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा ही, दिस सेक्शंस का क्वेश्चन आएगा ही, ये हम तुमको बता दिए। इट विल बी इन क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ये सेक्शन बी में रहेगा, ठीक है। ये तुम लोग करना ही, अभी इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये बहुत छोटा सेक्शन है। साइंटिफिक एसेट्स को अगर हम लोग सोल्ड करते हैं तो इसमें 2 केसेस है। बिजनेस में बिना यूज किए, विदाउट यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, और आफ्टर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, माने बिजनेस पर्पस में यूज करने के बाद सेल करना और बिना बिजनेस में यूज किए सेल करना। अगर ये 2 केस होगा तो क्या इफेक्ट आएगा मेरा प्रॉफिट पे, यही तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा और इसी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसेट्स may use scientific research asset for his other business purpose after completion of scientific research. Conversion of scientific research assets into normal business assets, माने साइंटिफिक रिसर्च में जो भी एसेट्स यूज होता है ना उसमें 100% रिडक्शन मिलता है, और प्रीवियसली उसमें 200% भी था और 150% भी था, लेकिन अभी इस ईयर से 100% ही डिडक्शन है। क्लियर? तो अगर तुम कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स में तुम डिडक्शन ले चुके हो और उसको अगर तुम अपना नॉर्मल बिजनेस एसेट बनाते हो या उसको बेचते हो तो क्या इफेक्ट आएगा, व्हाट विल द इफेक्ट, ठीक है। या उसको क्या कर रहे हो, विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस, या तो बिजनेस में यूज करके बेच रहे हो या बिजनेस में बिना यूज किए बेच रहे हो। इन दोनों केस में टैक्स लायबिलिटी विल अराइज। इन बोथ द केसेस टैक्स लायबिलिटी विल अराइज। इन बोथ द केसेस टैक्स लायबिलिटी विल अराइज। ओके, नेक्स्ट। विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर अदर पर्पस, अगर बिजनेस में अदर पर्पस में यूज नहीं करके बेच रहे हो, माने बिजनेस में एसेट्स नहीं बना रहे हो, तब क्या होगा, सेल्स कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स shall be taxable as business income in the year of sales. The excess of sales consideration over original cost or index cost of acquisition is taxable as capital gain under section 45. This is applicable even if the business is not in the existence. अगर business existence नहीं भी है तो भी तुमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा बिजनेस इनकम बोल के, ठीक है। इसमें कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट लोअर ऑफ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डिडक्शन अलाउड, माने जो कॉस्ट है उससे डिडक्शन माइनस कर लो, वो सेल प्राइस से माइनस करो तो ये एक वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगा, और दूसरा क्या है, डिडक्शन जितना तुमको मिला है, जितना तुमको मिला, इन दोनों में जो लोअर वैल्यू होगा, इन दोनों में जो लोअर होगा वो तुमको डिडक्शन, यू विल गेट द डिडक्शन। और उसके बाद क्या तुमको निकालना, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होगा, सेल प्राइस से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक्सेस प्राइस, अगर सेल प्राइस से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सेस है तो तुमको कैपिटल गेन होगा एंड यू विल गेट कैपिटल गेन, ठीक है। उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम बिजनेस में अदर पर्पस पे यूज करके करते हो। इफ यू विदाउट हैविंग यूज फॉर अदर पर्पस, बिजनेस में यूज नहीं करके करते हो तो, अगर हम लोग बिजनेस में यूज करके करते हैं आफ्टर बीइंग यूज फॉर अदर पर्पस, अगर बिजनेस में यूज करके अगर हम लोग करते हैं देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, तो सेल्स कंसिडरेशन शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट्स। जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है ना, वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, उसको हम लोग, ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है उससे हम लोग लेस कर देंगे सेल्स कंसिडरेशन बोल के, और उसके बाद देखेंगे इट इज टू बी नोटेड दैट एट द टाइम ऑफ कन्वर्सन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इनटू नॉर्मल बिजनेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन। जब उसको ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल के, परचेस बोल के, ऐड परचेस ड्यूरिंग द ईयर, उसको अपना बिजनेस एसेट्स बनाएंगे तो उसका वैल्यू नील होगा, उस ब्लॉक में ऐड होगा लेकिन वैल्यू नील के हिसाब से ऐड होगा। फिर लेस करेंगे सेल्स कंसिडरेशन, करने के बाद जो फिगर आएगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालेंगे और बिजनेस इनकम निकालेंगे। बिजनेस इनकम निकालने के बाद टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि बिजनेस की यूज करके बेचना अच्छा है ना बिना यूज करके बेचना अच्छा है, दोनों हम लोग देखेंगे। उसमें से जो मेरे को टैक्स बेनिफिट देगा उसी को हम लोग चूज करेंगे। यही दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील होगा क्योंकि टोटल कॉस्ट तुम्हारा क्या होगा, डिडक्शन मिल गया, इसीलिए इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील होगा। और नो डेप्रेशन विल बी अलाउड ऑन सच एसेट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर अदर बिजनेस। अगर कोई अदर बिजनेस में यूज करते हो तो कोई भी डेप्रिसिएशन तुमको नहीं मिलेगा, नो डेप्रेशन विल बी अलाउड, मतलब क्योंकि इस एसेट्स का वैल्यू ही नील लिए हो तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन लेने होने का बात ही नहीं आता, यू कांट गेट एनी डेप्रिसिएशन। तो इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया कि नहीं बोलो। नाउ वी विल डू केस स्टडी ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक एसेट्स। साइंटिफिक एसेट्स पे हम लोग केस स्टडी करेंगे, ठीक है। 2 केस स्टडी करने से, 2 या 3 केस स्टडी करने से तुमको समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक एसेट्स का क्या है। ओके, तो पहला केस स्टडी क्या, आर परचेज एंड एसेट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर ₹15 लाख इन द प्रीवियस ईयर 2010-11। 10-11 में वो
कितना रुपए में खरीदा? 15 लाख रुपए में खरीदा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 द सेड एसेट सीज टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। माने उस एसेट्स को अब साइंटिफिक रिसर्च में यूज नहीं करना है, खत्म हो गया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सबमिटेड बाय टू यू। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तुम्हारा 5 लाख है। WDV ऑफ BOA, BOA माने होता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का रिटन डाउन वैल्यू कितना है? 10 लाख, और इसका ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, माने इस ब्लॉक पे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और इस ब्लॉक का ओपनिंग WDV कितना है? 10 लाख रुपया। द साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स इफ यूज फॉर बिजनेस शैल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। ये भी तुम्हारा साइंटिफिक एसेट जो है वो 15% ब्लॉक में ऐड हो सकता है, उस पर भी 15% डेप्रिसिएशन मिल सकता है। Suggest your view from tax planning point. If the scientific research asset is sold for 28 lakhs, कितना रुपए में बेच रहे हो? 28 lakhs में बेच रहे हो, assuming it is sold without using for business and it is sold after using for business. पहला है कि अगर बिजनेस में बिना यूज किए बेचते हो, बिजनेस में यूज किए बिना सोल्ड करते हो तो क्या केस होगा, और बिजनेस में यूज करके अगर सोल्ड करते हो तो व्हाट विल हैपन। तो अब हम लोग बिजनेस में बिना यूज किए और यूज किए वाला फार्मूला को लगा के हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला केस क्या है? पहला केस हम लोग बनाएंगे, इफ एसेट्स इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस, बिना बिजनेस में यूज किए अगर इसको हम लोग सेल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 43(1). ओके, तो बैलेंसिंग चार्ज हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग चार्ज तुम लोग को अभी बताए थे क्या होता है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या आएगा बताओ? नंबर 1 में सेल प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस डिडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब सेल प्राइस मेरा कितना? 28 लाख, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था? देख लो, कॉस्ट प्राइस मेरा है 15 लाख। 15 लाख उसका कॉस्ट प्राइस था, और उस पर हम लोग 15 लाख की डिडक्शन लिए। वी हैव टेकन 15 लाख एज डिडक्शन। अब तुम बोलोगे सर दिया हुआ नहीं है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो 100% डिडक्शन ही मिलता है, तो वही ले लेंगे। अगर बोल देगा कि 150% और 200% तो वो था डिडक्शन यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा इस केस में? 28 लाख आ जाएगा। और नंबर 2 पॉइंट में क्या है? नंबर 2 पॉइंट में आएगा, ठीक है, डिडक्शन अलाउड। कितना डिडक्शन तुमको मिला इसमें? 15 लाख। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 15 लाख। तो 15 लाख तुम्हारा क्या हो गया? 15 लाख विल बी योर बैलेंसिंग चार्ज। यानी बैलेंसिंग चार्ज माने ये इनकम है तुम्हारा। 15 लाख तुम्हारा इनकम हो गया। 15 लाख इज योर बैलेंसिंग चार्ज। 15 लाख तुम्हारा क्या हो गया? बैलेंसिंग चार्ज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। इस ब्लॉक का वैल्यू क्या? WDV कितना है? इस ब्लॉक का WDV है 10 लाख रुपया। तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? ठीक है, डेप्रिसिएशन देखो कैसे करके स्टेप बाय स्टेप चलना है। डेप्रिसिएशन क्या है? इस ब्लॉक का वैल्यू है 10 लाख रुपया। सॉरी, इस ब्लॉक में कोई एसेट्स इंट्रू नहीं हुआ तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1,50,000। कोई एसेट्स तो ऐड होगा नहीं क्योंकि विदाउट यूजिंग है ना, तो एसेट्स हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग कैपिटल गेन भी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट द कैपिटल गेन? छोटा छोटा करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। तो कैपिटल गेन में मेरा सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 28 लाख। ठीक है, सेल्स कंसिडरेशन 28 लाख है, लेस इंडेक्स
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसेट्स को हम लोग 10 लाख में खरीदे, सॉरी 10 लाख में नहीं खरीदे थे, 15 लाख में खरीदे थे। ओके, वी हैव परचेज द एसेट्स ऑन 15 लाख। ₹15 लाख में एसेट्स खरीदे थे, तो 15 लाख इंटू करंट ईयर का इंडेक्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 2010-11 में खरीदे थे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। करंट ईयर का तुम्हारा 289 है और 10-11 का 167 है, तो इंटू 289 डिवाइडेड बाई 167, ठीक है, इंटू 89 डिवाइडेड बाई 167, क्लियर। तो 15 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 167, तो ये तुम्हारा आ रहा है 2595,808, 2595,808 माइनस 28 लाख, तो ये तुम्हारा आ गया 204,192। ये तुम्हारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तुम्हारा क्या बन गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। तो क्या क्या निकाले, बैठा दे रहे हैं। पहले तुम लोग बैलेंसिंग चार्ज निकाल लोगे, बैलेंसिंग चार्ज निकालने के बाद डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद कैपिटल गेन अगर है तो कैपिटल गेन निकाल लोगे। उसके बाद अब हम लोग बिजनेस इनकम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम मेरा कितना है, देखो यहाँ पर बिफोर डेप्रिसिएशन मेरा बिजनेस इनकम दिया हुआ। बिफोर डेप्रिसिएशन माय बिजनेस इनकम इज 5 लाख। ओके, तो बिफोर डेप्रिसिएशन मेरा बिजनेस इनकम कितना? 5 लाख। तो 5 लाख मेरा बिजनेस इनकम है। 5 लाख में से हम लोग का डेप्रिसिएशन चला जाएगा। डेप्रिसिएशन है 1,50,000, डेप्रिसिएशन है 1,50,000 और बैलेंसिंग चार्ज ऐड हो जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज 15 लाख रुपया आएगा। ये रहा बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 43(1), ठीक है, 41 सब सेक्शन 3 में 15 लाख रुपया है, तो वो मेरा ऐड हो गया। तो कितना आ गया? 5 लाख में से 20 लाख हो गया, 20 लाख में से 1,50,000 हो गया, तो 18,50,000 इज माई बिजनेस इनकम। 18,50,000 इज माई बिजनेस इनकम। ओके, अब हम लोग टैक्स निकाल लेंगे, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, ऑन बिजनेस इनकम पे क्या होगा? बिजनेस इनकम पे 18,50,000 है ना, उसका 30%, 18,50,000 का 13%, तो 18,50,000 इंटू 30%, तो इसका आ रहा है 5,55,000, 5,55,000। और कैपिटल गेन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% होता है, तो 204,192 इंटू 20%, ठीक है, तो 204,192 इंटू 20%, तो इस पर आ रहा है 40838, ठीक है, प्लस 555,000, ये तुम्हारा आ गया 595, ठीक है, 838, 595,838 इंटू 4%, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ रहा है 23834, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 619,672। इसमें ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस @4%, तो ये तुम्हारा आ गया टैक्स लायबिलिटी। तो बिजनेस में बिना यूज किए अगर करते हो तो टैक्स लायबिलिटी तुम्हारा आ रहा है 619,672। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया ना? इसमें कोई क्वेरी है? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल गो विदाउट विद व्हेन वी यूज इन द बिजनेस। जब हम लोग बिजनेस में यूज करेंगे तब बनाएंगे। इज देयर एनी क्वेरी? हेलो हेलो। No, sir.
अब हम लोग तो यानी मशीन को यूज करके अगर करते तो मेरा 6 लाख टैक्स आ रहा है। इफ मशीन इज सोल्ड विदाउट यूजिंग इन बिजनेस, तो अब दूसरा नंबर केस में क्या बनाएंगे, इफ एसेट्स सोल्ड आफ्टर यूजिंग इट इन बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस में यूज करके अगर इसको हम लोग सोल्ड करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहीं पे बनाएंगे ओपनिंग WDV है वो लिख लेंगे। ओपनिंग WDV 10 लाख रुपया था, ओपनिंग WDV 10 लाख रुपया था। अब उसमें ऐड कर देंगे, ऐड साइंटिफिक रिसर्च मशीन, साइंटिफिक रिसर्च मशीन को ऐड कर लेंगे। वो साइंटिफिक रिसर्च मशीन का वैल्यू नील होगा, तो ये तुम्हारा 10 लाख आ जाएगा। इसका वैल्यू नील पकड़ोगे, हाँ इसका वैल्यू तुम कॉस्ट मत पकड़ लेना, इसका वैल्यू हम लोग को नील पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे लेस एसेट्स सोल्ड। कितना में एसेट्स बेच रहे हो, एसेट्स बेच रहे हो 28 लाख। तो 28 लाख में अगर बेचोगे तो ये ब्लॉक क्या आ जाएगा, ये ब्लॉक तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव। योर दिस ब्लॉक विल बी नेगेटिव, यानी 18 लाख रुपया तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, पता है ना। ये 18 लाख रुपया नेगेटिव आने का मतलब ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट। अगर ये ब्लॉक नेगेटिव आ गया इसका मतलब तुमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, डेप्रिसिएशन तुम्हारा हो जाएगा नील, डेप्रिसिएशन विल बी नील, यानी डेप्रिसिएशन तुम्हारा नील हो गया। इज इट क्लियर, डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्या हो गया, नील हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो अब हम लोग का बिजनेस इनकम कितना रहेगा, तब बिजनेस इनकम मेरा क्या है, बिजनेस इनकम मेरा 5 लाख है, तो 5 लाख ही रहेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नील है। इसलिए बिजनेस इनकम से डेप्रिसिएशन माइनस करने का मतलब है, यार करना चाहो तो कर सकते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तुम्हारा कितना है, 18 लाख रुपया। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 23 लाख। अब ये 23 लाख पे टैक्स कितना आएगा, टैक्स लायबिलिटी 23 लाख इंटू 31.2%। एडुकेशन सेस जोड़ के निकालते रहे, ठीक है, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस जोड़ के इसको निकालते रहे। 23 लाख इंटू 31.2%, तो ये आ रहा है 717,600, 717,600। और यहाँ पर आया था 619,672। ऊपर में कितना आया था, विदाउट यूजिंग अगर करते हो तो 619,672 आया था, और विथ यूजिंग करते हो तो 717,600 आया था। कितना आया था, 717,600 आया था। तो कौन सा बेटर है बोलो। सो ऑप्शन 2 इज बेटर, ऑप्शन 2 इज बेटर फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऑप्शन 2 इज बेटर फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। अगर कोई क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, यू कैन आस्क मी। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी चीज पूछना है तो पूछ सकते हो।